Hello children, welcome back to my channel Simplified Maths. दोस्तों we are meeting after a few days because of some personal problems. Now I am continuing today with the chapter 10, that is chapter 10, that is lines. Okay, and in the last lecture I think we have discussed up to exercise 10.3. There were few sums left in exercise 10.3, but you can try it at your own, and if there is any doubt you can ask me, because now the offline lecture is also going on. Okay, right? So now today दोस्तों I am continuing with the next theory point, which is there in the last you just say page number 476. That is a supplementary material given in your textbook, not in the chapter 10, but at the end supplementary material is given. In the supplementary material, okay, there are two theory topics given of this chapter that today we are going to discuss. And out of this, the first topic is very simple, and the exercise is also very simple. I will give only one sum and you can do the remaining. Okay, right? Now what is the title there? I have already written to save my time. Equation of family of lines. Now see, family of lines, this is, okay, family of lines passing through the point of intersection of two lines. Okay, so what are the two lines? Now let me write the two lines. Let us say the two lines are a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, and second line a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Okay, suppose these two lines are given to us, and what is the title again? Let us say equation of family of lines passing through the point of intersection of these two lines. Okay, right, is given by, now no proof of this, you just have to accept the given formula, whatever I am writing, and then we will do a sum. Okay, is given by, now what is the equation given? Just see there. This is the first line, that is a1x plus b1y plus c1. Okay, now you have to put this like bracket plus k into second line. क्या करना है? पहले फर्स्ट लाइन को लिखो, a1x plus b1y plus c1 plus k into second line. What is second line? a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Okay, right? Now this is the, you just say a statement or a formula which we have to follow in the problems. Okay, now geometrically what does this mean? मतलब कि ये जो heading हमने लिखा title, उसका मतलब क्या है? That you are given two lines. Say this is the one line, this is the second line, suppose L1 and L2. Okay, now see दोस्तों, ये this is our point of intersection. Okay, now from this point of intersection how many lines can be drawn? Infinite lines can be drawn like this, isn't it? Okay, तो ऐसे आप कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो दोस्तों? Infinite lines. I am just showing few of them. Okay, like this, right? Few lines I am drawing, but we can have how many such lines? Infinite. ठीक है ना, राइट? तो ये जितनी भी मैंने ब्लू स्केच पेन से ड्रॉ किया हुआ है, इट इज़ नोन एज फैमिली ऑफ लाइन्स. फैमिली ऑफ लाइन्स मतलब, you know what is the meaning of family? Logically family means what? Okay, family means it's a group. Family means it's a group which has some common characteristic, that is called family. ठीक है ना, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता ही है फैमिली में. यू नो, कोई फैमिली में आप देख लो, आप अपने खुद की फैमिली भी देखोगे तो या तो सबके चेहरे फेस इक्वल मिलते आते होंगे, हाँ, आइदर ब्रदर और सिस्टर और मम्मी और पापा. ओके, या
देयर विल बी सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इन ऑल ऑफ द फैमिली मेंबर्स। किसी की चलने की स्टाइल एक समान हो सकती है, किसी की हैबिट कोई एकदम कॉमन हैबिट होती है सबकी, दैट इज कॉल्ड अ फैमिली। सो व्हाट इज द characteristic of these lines? The characteristic of this line is that all these lines are passing through the point of intersection of the two lines L1 and L2. Okay, passing through L1 and L2. इज दैट क्लियर? तो मतलब क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हो गई उसकी कि ये ऐसी लाइन्स है जो यहाँ से पास हो रही है, देयरफॉर इट इज नोन एज फैमिली ऑफ लाइन्स। इज दैट क्लियर दोस्तों? ओके, एनी डाउट? राइट, एंड दिस इज द फॉर्मूला विच वी हैव टू फॉलो। उसको विदाउट प्रूफ आप एक्सेप्ट कर लो और फिर हम उसकी एक्सरसाइज अभी अभी जस्ट नाउ आई एम गोइंग टू डू एंड सी हाउ सिंपल इट इज। एक्सरसाइज 10.4, all of you just see in your textbook page number 478. Now see, there are only 4 sums given to us. There are only 4 sums are given. You can try any one of the sum just now. ओके, अभी कोई भी एक सम आप कर लो। सपोज कि भाई मैंने सम नंबर 2 ले लिया। आई एम टेकिंग सम नंबर 2। 1 2 3 4 ऑल आर सिमिलर एंड वेरी सिंपल। अब जो के है ना यहाँ पर, ये जो के, टू फाइंड आउट द के देयर विल बी डिफरेंट कंडीशंस गिवन इन द प्रॉब्लम। वो कंडीशन आप यूज़ करोगे तो आपको के मिल जाएगा, और जो के वैल्यू मिलेगी वो के आपको यहाँ पे इन प्लेस ऑफ के you have to replace, and once you replace and then simplify you will get the answer। बहुत ही सिंपल होगा, देखना, ठीक है? राइट, सो सेकंड सम इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट्स द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स। सो व्हाट आर द गिवन लाइन्स? अभी मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिखूंगा। व्हाट आर द गिवन लाइन्स? पहले मैं लाइन्स लिख देता हूँ। तो given lines are x plus 2y minus 3 is equal to 0, and what is the second line given? 4x minus y plus 7 is equal to 0। okay, so अब क्या करना होगा? what will be the required line? required line means line passing through, okay, line passing through, okay, line passing through the point of intersection of these lines। these lines मतलब जो given line है, ठीक है, will be गिवन बाय व्हाट? तो अभी क्या है फॉर्मूला? ये हमारी फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला यूज़ करो। तो ये फर्स्ट लाइन है, सो इट इज़ x प्लस 2y माइनस 3, ये फर्स्ट लाइन हो गई, प्लस k इंटू सेकेंड लाइन दैट इज़ 4x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन हो गई। राइट दोस्तों, अभी इसमें क्या करोगे? अब जो कंडीशन आगे दिया हुआ है ना, अभी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले है ना, ऑलवेज इन ऑल द 4 प्रॉब्लम्स आप क्या करोगे कि यू जस्ट कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू द जनरल फॉर्म। व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन? जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इट इज द जनरल फॉर्म। तो आप इसको जनरल फॉर्म मतलब पहले देखो, x प्लस 4kx, x को साथ में ले लो, x प्लस 4kx, टेक x कॉमन। सो आप एक x कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस 4k इंटू एक्स। फर्स्ट x टुगेदर, नाउ y टुगेदर, तो यहाँ से 2y एंड माइनस ky, उसमें से आप y कॉमन निकाल लो, तो प्लस
2 माइनस k इंटू वाई. सो 2y माइनस ky हो गया. एंड द रिमेनिंग इज कांस्टेंट. व्हाट इज कांस्टेंट? -3 प्लस 7k. -3 प्लस 7k इज इक्वल टू 0. ठीक है, गॉट दिस. अब ये करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर अभी k अननोन है, राइट, दैट वी हैव टू ऑब्टेन. ये हमको एक k फाइंड करना है, ठीक है ना. अब k फाइंड करने के लिए आपको कुछ ना कुछ कंडीशन दिया होगा. आप जस्ट रीड द सम अगेन. फाइंड द इक्वेशनेबल लाइन through the intersection of these two lines and which is parallel to, अब देखो कंडीशन दिया, and which is parallel to 5x plus 4y minus 20 is equal to 0. ये हमको दिया हुआ है. नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन. ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन हो गई. ये रिक्वायर्ड लाइन है. ओके, विच इज, दिस लाइन इज पैरेलल टू. ओके, ऐसा दिया हुआ है. दिस लाइन इज, और जस्ट से विच इज पैरेलल टू. तो कौन सी लाइन दी है हमको? 5x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0. नाउ ये हमारी लाइन गिवन है and parallel to this line. Now what is the condition for the lines to be parallel to each other? The slope will be equal. याद है ना, इक्वल स्लोप. मतलब कि इस लाइन का स्लोप और जो रिक्वायर्ड लाइन है उन दोनों का स्लोप जो है वो सेम होगा, तभी तो पैरेलल होगा, isn't it? ओके, सो हम क्या कहेंगे? Thus you can say slope of both the lines will be equal. Okay, will be same. Let me say same. Both the lines मतलब कौन सी? एक तो ये लाइन और वो रिक्वायर्ड लाइन. Therefore that is just, let us say m1 is equal to m2. m1 मतलब कि ये वाली लाइन, ये वाली लाइन है. अब इसका स्लोप क्या होगा? व्हाट इज द स्लोप फॉर्मूला? याद है ना स्लोप फॉर्मूला? माइनस ए बाई बी. स्लोप इज व्हाट? माइनस ए बाई बी. दिस इज ए, दिस इज बी एंड कांस्टेंट इज सी. सो ए इज इक्वल टू 1 प्लस 4k, बी इज इक्वल टू 2 माइनस k. सो माइनस ए बाई बी क्या होगा? माइनस ए बाई बी. सो माइनस 1 प्लस 4k, 1 plus 4k upon 2 minus k. So minus a by b and is equal to, here what is the slope here? minus 5 by 4. ओके, सो कौन सी फॉर्मूला हमने यूज़ की स्लोप के लिए? ये वाली फॉर्मूला, m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी. ये हमारी स्लोप की फॉर्मूला है, वो याद करनी है आपको. ठीक है ना? ओके, नाउ दैट्स ऑल. नाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k. माइनस माइनस कट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 4 प्लस 16k इज इक्वल टू 10 माइनस निकल गया है, ठीक है ना, तो 10 माइनस 5k बराबर. ओके, तो अब यहाँ से माइनस 5k इस तरफ आ जाएगा तो 21k इज इक्वल टू 6. ठीक है, तो क्या मिल गया फाइनली हमको? देयरफॉर यू हैव k इज इक्वल टू 6 अपॉन 21. 6 अपॉन 21 में से 3 2 ज़ा 6 एंड 3 7 ज़ा 21. सो इट विल बी 2/7. हमको k वैल्यू मिल गई. अब ये जो k वैल्यू मिली हमको वो आपको k की जगह पे रिप्लेस करनी है. दैट्स ऑल. दस you get the required equation of the line is. okay, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो अब जो k वैल्यू आपको रिप्लेस करनी है ना, आइदर आपको कहाँ पे सिंपल लगता है,
आप यहाँ पे भी रख सकते हो, ये जो के हर जगह पे, और यहाँ पे भी रख सकते हो, ये जो ओरिजिनल वाला है ना उसमें भी रख सकते हो। यूजुअली आप देखोगे ना डाइजेस्ट में या टेक्स्ट बुक में, तो वो लोग ये वाले में नहीं रखते हैं, वो क्या करते हैं इसमें रख देते हैं। तो एज यू विश ना, इट्स नॉट कंपलसरी, आप कहीं पे भी रख सकते हो, राइट। सपोज मैंने यहाँ पे रखा तो यहाँ पे मुझे 2/7 इधर लिखना होगा। सो x प्लस 2y माइनस 3, x प्लस 2y माइनस 3 प्लस 2/7 इंटू सेकेंड लाइन क्या है 4x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, बस अब खाली 7 एलसीएम ले लो, तो हमारा आंसर आ गया। तो 7 एलसीएम लेंगे तो 7x प्लस 8x विल बी क्या हो गया 15x, बाद में 14y माइनस 2y, यहाँ पे 14y माइनस 2y तो प्लस 12y हो गया। ठीक है, राइट। और फिर कांस्टेंट देखे तो -21, ये -21 और 7 2 ज़ा 14, -21 प्लस 14, तो इट विल बी -7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, राइट। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। गॉट दिस? तो ऑल 4 सम्स दोस्तों यू हैव टू डू बाय द सेम वे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम वे। इज दैट क्लियर? सो इन द होमवर्क you just have to finish the exercise 10.4। ठीक है दोस्तों, एक्सरसाइज 10.4 जो है वो आप पूरी फिनिश कर दोगे, विल बी डन। ठीक है, राइट। तो कुछ नहीं है इसमें, जो भी कंडीशन दिया होगा ना वो कंडीशन को आप यूज़ करोगे, आपको के मिल जाएगा, और के की वैल्यू जो मिली वो आप वो के की जगह पर रिप्लेस करोगे, दैट्स ऑल, एंड देन यू विल गेट दी आंसर, फिनिश। ठीक है ना? ओके, एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, ऑल्सो टुडे ओनली वी विल फिनिश द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑल्सो ईजी बट मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, ईजी तो है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम। द टॉपिक इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ओके, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थियरी, नॉट ओनली फॉर 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड, फॉर योर फ्यूचर पर्पस ऑल्सो। ठीक है, राइट। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे हम उसको कि भाई शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से क्या होता है और क्या उसका मतलब क्या होता है, वो सब हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, suppose that I have 2 axes, just say x axis and y axis like this, ये x axis है, ये y axis है, ओके। और ये है हमारा ओरिजिन 0 0, ठीक है। एंड सपोज दैट हियर इज सम पॉइंट, हाँ, यहाँ पर कोई पॉइंट है, मानो ये जो पॉइंट है वो पॉइंट सपोज P है, और दैट पॉइंट इज PXY। ओके, राइट। अच्छा, नाउ ज्योमेट्रिकली इसका मतलब क्या है, XY का मतलब यू नो कि अगर आप यहाँ से ये पॉइंट P से अगर आप यूँ Y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ऐसे you draw a perpendicular on y-axis, let me draw a straight line only, okay। तो ये क्या होगा, ये y होगा, और यहाँ से x पे आप यूँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे आप, तो ये क्या होगा, x होगा। हाँ, होप यू नो दिस, इजंट इट? ओके, तभी तो ये पॉइंट XY बना होगा ना ज्योमेट्रिकली, ग्राफिकली। ठीक है ना, राइट। नाउ सी, नाउ इम्पोर्टेंट पॉइंट कम्स। हमारा ओरिजिन यहाँ है, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस ओरिजिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, ओके, आर x and y, राइट।
तो अब ये ओरिजिन जो यहाँ है वो हम यहाँ से और कहीं पे और किसी दूसरी जगह पे हम शिफ्ट कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ से ओरिजिन को हम दूसरी जगह पे हम शिफ्ट करेंगे। सो कहाँ पे शिफ्ट करेंगे दैट इज़ नॉट श्योर, इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम्स गिवन। ओके, राइट। अभी मैंने जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट ही ड्रॉ किया हुआ है और मैं ओरिजिन को शिफ्ट करके यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आगे लाने वाला हूँ। लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ऑलवेज यही करना होगा, ठीक है। तो सपोज ये जो पॉइंट ओ है ओरिजिन, वो मैं यहाँ से शिफ्ट करके मैंने सपोज कि भाई मैं यहाँ पे ले आया एट दिस पॉइंट। सपोज मैंने ये पॉइंट ओ यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया, बट बी केयरफुल व्हेन यू शिफ्ट द ओरिजिन, डोंट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस। मतलब अब यहाँ पर ओरिजिन आ गया है तो मुझे एक्स एक्सिस जो है वो सेम टू सेम डायरेक्शन में ड्रॉ करनी है। ओके, ऐसे मतलब ये क्या हो गई एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस भी इसके पैरेलल ही ड्रॉ करना है ऐसे, ठीक है। ये हो गई वाई एक्सिस, राइट। अब ये जो पॉइंट हमने जो शिफ्ट किया ना दोस्तों, राइट, ये जो शिफ्टिंग पॉइंट है उसको मैंने ओ डैश बोलता हूँ। ओके, आई विल कॉल इट ओ डैश। नाउ ओ डैश इज द न्यू ओरिजिन। ओके, corresponding to 0 0, o dash will be h k। just for instance मानो कि o dash के कोऑर्डिनेट्स क्या है h k, क्योंकि 0 0 तो ओरिजिनली यहाँ है, तो यहाँ है, तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पे एच के है। इसका मतलब क्या दोस्तों, अब फिर से ग्राफिकली सोचो ध्यान से, हाँ। तो ये जो लेंथ है इतना देखना, ये वाला, ये क्या हो गया एच हो गया, तभी यहाँ पे एच आएगा ना एक्स कोऑर्डिनेट। और ये जो लेंथ है वो लेंथ कितनी होगी के, देन ओनली ये एच के होगा ना। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, राइट। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दोस्तों, और वो ये है कि अब जो न्यू हमने एक्सिस जो ड्रॉ किया है उसको भी एक्चुअल में एक्सिस जो है वो ये था, वो चेंज तो हुआ ना, no doubt parallel had no direction changes, but axes are different than the original one। ओरिजिनल एक्सिस जो थे उसके बदले ये नए एक्सिस भी बने, तो उसको हम एक्स डैश और वाई डैश बोलेंगे, ठीक है। एक्सिस को भी डैश नाम देना है, एक्स डैश वाई डैश, राइट। सो व्हाट टू रिमेंबर, all new things will be denoted by dash notation। see, o 0 0 ओरिजिनल मतलब ओरिजिन है, ओ डैश एच के न्यू ओरिजिन, एक्स एक्सिस ओल्ड एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया एक्स डैश विल बी न्यू एक्स एक्सिस, ये वाई इज ओल्ड वाई एक्सिस, वाई डैश विल बी न्यू वाई एक्सिस। समझ रहे हो ना। ओके, तो अब पी एक्स वाई जो है वो पी एक्स वाई क्या है दोस्तों, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी कॉरस्पॉन्डिंग टू ओ है ना। ओके, तो अब ओ डैश के कॉरस्पॉन्डिंग उसके नए कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, तो उसको भी डैश लिखना पड़ेगा, एक्स डैश वाई डैश। ओके, सो नाउ व्हाट इज एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश आर द न्यू x dash y dash are the new coordinates of the point P corresponding to the new origin। ओके, तो अब फिर से थोड़ा जियोमेट्रिकली ग्राफिकली सोचो, तो x डैश मतलब क्या होगा दोस्तों, ये जो लेंथ है ये वाली लेंथ, ये कितनी होगी x डैश होगी कि नहीं, तभी ये x डैश आया होगा ना। और ये जो लेंथ है ये कितनी होगी y डैश, ये वाई डैश होगी, ठीक है ना। होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, राइट। अब देखो एक्चुअली एक्स डैश है क्या, तो थोड़ा ध्यान से देखना, ये ओरिजिन से देके यहाँ तक की लेंथ कितनी है बोलो। ये लेंथ में जो अभी ड्रॉ करता हूँ
ये टोटल लेंथ कितनी है, एक्स है ना, बिकॉज हियर इज एक्स, हाँ, ओके। और ये दिस मच इज हाउ मच, एच। तो ये पूरा एक्स है, उसमें से ये लेंथ आप सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस होल माइनस एक्स माइनस एच, तो क्या हो जाएगा, एक्स डैश हो जाएगा कि नहीं। होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस एच, ठीक है। सिमिलरली वाई डैश क्या है, ध्यान से देखो, वाई डैश, व्हाट इज वाई डैश। तो अब देखो ये पूरी लेंथ यहाँ से लेके ये ओरिजिनल, दिस इज वाई, ये पूरी लेंथ वाई, बिकॉज ये वाई है ना, तो वाई में से ये के वाला इतना पोर्शन, इतना सेगमेंट आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो द होल वाई माइनस के विल बी वाई माइनस के, तो वो वाई डैश हो गया। सो व्हाट इज वाई डैश दोस्तों, वाई डैश इज इक्वल टू वाई माइनस के, ठीक है, राइट। सो इन फैक्ट क्या हुआ, हमको एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू मिल गई दोस्तों, ये जो नए कोऑर्डिनेट्स है। तो नए कोऑर्डिनेट्स आप कैसे ऑब्टेन करोगे, हाउ विल यू गेट द न्यू कोऑर्डिनेट्स, बाय शिफ्टिंग द ओरिजिन from O to O dash. The new coordinates x dash and y dash will be obtained by what formula, x dash is equal to x minus h and y dash is equal to y minus k. So is equal to, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, x minus h y minus k, ठीक है। ये पूरी थियरी एक्चुअली एक्सप्लेन हो गई दोस्तों। अब ये इतना सारा एक्सप्लेनेशन में नीचे लिखने वाला नहीं हूँ, यहाँ पे हम जो एक्सप्लेन किया ना उसमें से एक लाइन में पूरी फॉर्मूला, ये जो ऊपर ग्राफ में ड्रॉ करके बताया ना, वो लिखेंगे दैट द ओरिजिन if the origin is shifted, okay, origin is shifted to, okay, or say shifted from, okay, O00 to O dash, O00 to O dash HK, then coordinates, okay, then coordinates of the point P x y, okay, let me say new coordinates, यहाँ पे मैं न्यू लिख देता हूँ, new coordinates, okay, the point x y will be, okay, obtained by, तो कौन सी फॉर्मूला, क्या रिलेशन आ गया हमारे पास, सो दिस इज द फॉर्मूला, एक्स डैश इज इक्वल टू, राइट, एक्स माइनस एच एंड वाई डैश इज इक्वल टू वाई माइनस के, ठीक है। ये हो गई हमारी फॉर्मूला दोस्तों, ठीक है। दैट इज, इसको कभी दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हो कि x को सब्जेक्ट बना के भी यूज़ करना होता है इसको, कभी कभी आएगा कि x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच एंड y इज इक्वल टू वाई डैश प्लस के, ठीक है, राइट, ऐसे भी यूज़ करना होगा। वो जब प्रॉब्लम्स आएंगे एट दैट टाइम वी विल सी हाउ इट इज़ यूजफुल, ठीक है दोस्तों, राइट। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब देखो इसमें क्या है, द न्यू कोऑर्डिनेट्स, तो न्यू कोऑर्डिनेट्स के भी यहाँ पे इफ़ यू वांट टू गिव द नेम न्यू कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश वाई डैश, यहाँ पे वो भी लिख दो, ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई, मच मोर clarity in writing, the new coordinates, okay, x dash y dash of the point pxy will be obtained by this formula, ठीक है दोस्तों, राइट। तो बस ये हो गई हमारी पूरी थियरी। तो इसका आपको एक्सप्लेनेशन जब दिया है ना इन द टेक्स्ट बुक, तो आपको लगेगा कि यार ये क्यों ज़रूरी है, वाई दिस इज, ये ओरिजिन था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स वाई में क्या गलत था, why they are changing why they are shifting the origin, and then how, why it is all unnecessarily
we have to find the new coordinates of the given point. The reason right now you will not understand much, but in the higher studies you will be much more clear. Okay कि दोस्तों कि कभी कभी ऐसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आएंगे इन विच व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू नो दैट द ऑब्जेक्ट पॉइंट पी इज नॉट ओनली पॉइंट, एक्चुअली वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट दिया होगा विच इज़ नॉट क्लियर, विच इज़ नॉट विजिबल टू अस. ओके, क्लैरिटी नहीं होगी, पता ही नहीं होगा कि ये कौन सा कर्व है. लेकिन वंस यू शिफ्ट द ओरिजिन फ्रॉम 0 0 टू एनी अदर पॉइंट एंड देन यू चेंज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन कर्व, एक्स और वाई को आप चेंज कर दो और नए फॉर्म में आप उसको इक्वेशन को लिखो एक्स डेस वाई डेस के फॉर्म में. इन दैट केस क्या होगा, द न्यू कन्वर्टेड फॉर्म विद द न्यू ओरिजिन विल बी फैमिलियर टू अस इंस्टेड ऑफ द ओरिजिनल वन. ओरिजिनल जो दिया होगा वो एकदम कॉम्प्लिकेटेड होगा, कंफ्यूजिंग होगा, जो हमको पता ही नहीं होगा कि भाई ये तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है. लेकिन जब आप शिफ्ट ओरिजिन करके ये एक्स डेस वाई डेस फाइंड करके जब आप नए कोऑर्डिनेट्स नए फॉर्म में उसको कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा दोस्तों, यू विल गेट मच मोर फैमिलियर इक्वेशन विच यू कैन अंडरस्टैंड एंड सॉल्व इट इजीली. ठीक है ना. इसके बाद वाला चैप्टर कौन सा है दोस्तों, हमारा सर्कल मतलब कॉनिक सेक्शन है, जिसमें सर्कल आएगा, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स. तो वो इक्वेशन सब फैमिलियर है. लेकिन अगर ऐसे फैमिलियर इक्वेशन नहीं दिए होंगे ना, ओके, तो इन दैट केस वी हैव टू गो फॉर इट. ठीक है दोस्तों, राइट. तो अभी क्या है कि एक्सरसाइज 10.5 जो है ना वो भी एकदम सिंपल, खाली 2 सम्स आर गिवन देयर. ओके, आई एम जस्ट कीपिंग इट फॉर यू दोस्तों. आप ट्राई करना होमवर्क में. एक भी आई एम गिविंग यू इन द होमवर्क एक्सरसाइज 10.5, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर ने उड़ा दिया है. एक्चुअली बहुत ही सिंपल है. फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे क्लास में ऑफलाइन में पूछ सकते हो. बट आई नो दैट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल. ठीक है, कोई भी कोऑर्डिनेट दिया होगा दोस्तों तो आप उसको न्यू कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर दोगे. एक्स वाई ओरिजिनल है ओल्ड वाला, न्यू वाला एक्स डेस वाई डेस करके यू कैन ईजीली डू इट. ये पूरी एक्सरसाइज भी ऑब्जेक्टिव ही है, 1 मार्कर में ही आएगा. ठीक है, इसमें देर आर ओनली 2 सम्स विच यू कैन easily do, I hope. Okay, so in the next lecture दोस्तों I am planning to start a new chapter. Okay, and that is conic section, which is very very important. By the time, thank you very much, have a nice day, bye bye.